So, hello students, welcome again in GDAC series of PYQ solutions, right? For you, for RMS paper, UP Sainik paper, all military school papers, correct? As we know that we have covered multiple years of papers from 2017 to 25, right? For class 6th of all of those four schools of Sainik school, right? How it is that I understand you have picked up your preparations, completed all of the formalities of form fillings, and started your preparations with us in terms of previous year's paper solution and the other kind of revisions as well with our second series of revision, right, of all of the grammatical concepts, correct? Okay, so how it is there that you need to uh, do it out in such a way that you can save your time and you can have best results with the revisions as well as the previous year's paper questions solutions, but with your practice as well. It is not like that you can depend on only previous year paper solutions and don't do by the practice by yourself. It is not good for you, right? So what the good method is, just go with 1 year practice solution, solve that out, understand well, and then go for the same paper by yourself. Okay, so in this way you can have multiple ways of practices and understand that where you were lacking, where were the doubts, what was the issue and problem with you regarding that topic, correct? In this way you need to do. Okay, so the difference is with this part of this series of previous year's paper solutions is that it is of class 9th, right? Earlier we have covered papers from 2017, to 2025, correct? So 2027, I mean 2017 to 25, approximately 8 to 9 papers being done. You have checked multiple new techniques, time management methods, tricks, methods of solving the different kind of grammatical concept questions and all, right? Okay, and this is the difference only over here, that this is for class 9. That was whole series part was for class 6, correct? And this is for class 9th, correct? So let's start, let's check it out. How was the paper, what kind of questions were there, which type of difficulty label was there for the questions. Okay, let's check it out. Okay, so question number 1 was in this class 9th paper of 2017. The correctly punctuated sentence is, he asked me, option number A, he asked me whether I had done my homework. So he asked me whether I had done my work. He asked me whether I had done my work. He asked me whether I had done my work. Okay, first thing, this is firstly the question mark kind of sentence, asked me, right? So first thing we need to know that whether there would be question mark or not, right? Let's check it out how it is. He asked me whether I had done my work. He asked me whether I had done my work, question mark. He asked me whether I had done my work, question mark, without inverted commas. He asked me whether I had done my work without question mark and inverted commas, correct? Okay, so how it is there that firstly we need to check whether we need to put this sentence part in inverted commas or not, right? So he asked me whether I had done my work, right? This would can be the right one, right? Which one? Inverted commas. Okay, then he asked me whether I had done my work. So because whether is put over there, that's how it is a question
mark question, that means interrogative question, right? In interrogative question obviously you need to put one question mark, right? Yeah. Okay. So this would be the right thing, right? Second, the inverted commas are again right thing. So the right answer would be the B. He asked me, inverted commas, whether I had done my work, question mark. Right? This would be the right statement or the sentence or punctuated sentence for the same question. Okay. Second question. Which of the following will be the correct indirect speech? Indirect speech if the statement given below is changed into it. That means they are saying direct indirect, जिसको narration भी कहते हैं है ना. Okay, he said I shall leave these papers here. He said, he said, he said, he said, he said, that because direct to indirect convert हो जाएगा तो that आएगा, right? He said that I shall leave. I means he, right? तो he हो जाएगा उसका convert, ठीक है. Shall leave those papers here. Shall leaves. Shall का आपका क्या हो जाएगा? Should होगा या नहीं होगा बताओ. Shall का should होगा, right? Leave these papers here, right? Should leave those papers here. तो अब ये चेक करो पहले, क्या देखो बताते हैं. ही सेड दैट आएगा बिकॉज इन्वर्टेड कोमास रिलीज होंगे तो दैट आएगा. आई उसी के बारे में बात हो रही थी इसलिए उसने खुद बोला था आई, तो वो ही हो जाएगा, ठीक है. शैल लीव दीज पेपर्स हेयर. शैल लीव दीज पेपर. शैल ये क्या है? डायरेक्ट है. इनडायरेक्ट में क्या होगा? वो थर्ड फॉर्म में वो आपके पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा, करेक्ट. शैल का शुड हो सकता है. शुड का एक ही ऑप्शन है, शुड लीव दीज पेपर्स हेयर और दोज पेपर्स हेयर, ये इशू है, ठीक है. सो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है ही शुड लीव दोज पेपर्स हेयर, एक है सॉरी या he said that he would leave those papers here. फर्स्ट तो हेयर है, राइट. हेयर का देयर हो जाएगा, ठीक है. तो फर्स्ट तो ये आएगा आउट ऑफ दिस. ही आई शैल जो है, आई शैल ही सेड उसने कहा, ही सेड आई शैल लीव दीज पेपर्स हियर, मैं ये पेपर्स यहाँ छोड़ जाऊंगा, राइट, आई के साथ. दैट मीन्स उसने कहा वो वाले पेपर्स वहां छोड़ जाएगा, तो वो का दोज हो जाएगा और देयर भी हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा. दैट्स हाउ दिस बी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है. बी ऑप्शन इज द राइट वन फॉर द सेम, करेक्ट. ओके ओके. मीनिंग समझो, इसमें बोल रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. ही सेड उसने कहा, मैं आई शैल लीव दीज पेपर्स हियर, मैं ये सारे पेपर्स यहाँ छोड़ जाऊंगा, ये पेपर्स यहाँ छोड़ जाऊंगा. ओके. डायरेक्ट में क्या आएगा? ही सेड उसने कहा दैट कि वो सारे पेपर्स वहां छोड़ जाएगा. वो सारे पेपर्स के लिए हो गया दोस्त, वहां के लिए हो गया देयर, ठीक है. और शुड हो गया शैल का कन्वर्ट होके, ठीक है. दिस इज ओके. Then comes up next. The correct passive form of the following sentence is there. Active passive, ठीक है. Active passive is again an important topic. They asked me my name. Okay, they asked me my name, इसका active passive करना, ठीक है. They asked me my name. My name was asked by them. क्या होता है ये देखो, तीन रूल होते हैं. फर्स्ट रूल इज दिस,
दैट ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इतना है जो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, पहला चीज, ठीक है। तो मी माई नेम क्या हुआ, ये दे आज मी माई नेम, सो माई नेम was asked मी बाय देम। फर्स्ट तो ये चेक करो, माई नेम होगा ऑब्जेक्ट, वो इधर आएगा, यानी आपका बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो माई नेम आ गया, आस्ड है पास्ट टेंस है तो पास्ट का पास ही रहेगा, वॉज आएगा, माई नेम वाले चेक कर लो पहले, ए एंड डी आर माई नेम से स्टार्ट हो रहे, ठीक है। देन आस्ड, आज आज था ना तो वॉज आएगा, एंड क्योंकि सिंगुलर है माई नेम, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी आज, सो माई नेम वॉज आस्ड, ठीक है, माई नेम वॉज आस्ड, दे आस्ड, राइट, किसने पूछा, दे, फ्रॉम देम, नो नो नो, बाय देम, यस, और मी नहीं आ रहा है इसमें, दैट्स व्हाई A1 इज द करेक्ट वन, माई नेम वॉज आस्ड मी बाय देम, मुझसे मेरा नाम पूछा गया उनके द्वारा, ठीक है, या उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, सो सेम थिंग, मीनिंग इज सेम, द मेथड इज जस्ट अपोजिट ऑफ सेइंग द थिंग्स, राइट। नेक्स्ट, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कैलेमिटी, कैलेमिटी, कैलेमिटी आपका होता है, इफ वी चेक, डिजास्टर ही होता है जो ए ऑप्शन दिया हो, दैट मीन्स आपदा, आपदा, ओके, दैट मीन कोई नेचुरल कैलेमिटी या नेचुरल डिजास्टर जो आ जाता है वो होती है कैलेमिटी, लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट and flood and drought and tsunami, है ना, right, these are the ones, ठीक है। so disaster would be the right synonym of calamity, ठीक है, synonym। 55th, the red letter day means red letter day, an important day, bloody day, a dangerous day, a rosy day, right, it would be an important day, ठीक है, ठीक है, red letter day, it would be the an important day, okay। Then comes up the correct antonym of the word asset is, the correct antonym of the word asset is, asset, see asset क्या होता है, asset means होता है आपका, एसेट आप कहते हो उसके लिए जो कि आपका यूजेबल आइटम होते हैं आपके पास, ये कह सकते हो, रिसोर्सेस, रिसोर्सेज आर अंडरस्टूड एज एसेट्स, जो कि जिनके बेस पे आप कुछ बना सकते हैं, ठीक है, दिस, ठीक है, दिस, या, तो दे आर आस्किंग द एंटोनिम, ओके, एसेट होता है जिसके बेस पे आप कोई प्रॉफिट अर्न करते हो, ऐसा समझ सकते हैं, राइट। एसेट मीन्स कोई रिसोर्सेस, कोई आइटम, सामान, जिसके बेस पे आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसमें आपको कुछ पैसे मिलते हैं, ऐसा समझो, सिंपल। और उसका अपोजिट ऐसी थिंग्स जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो होती है लायबिलिटी, मीन्स कोई ऐसी चीज होती है जिसके आपको पैसे मिलते हैं, और कोई ऐसी चीज होती है जिसके राइट ना, जिसके आपको पैसे देने पड़ते हैं, राइट। सो लाइबिलिटी होती है जिसके देने पड़ते हैं, दैट्स व्हाई ए आंसर इज द करेक्ट वन, ठीक है, दिस, ओके। Yes. Then the plural form of aluminous is, plural form of aluminous, aluminous होता है, aluminous as we know, aluminous होता है किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एल्यूमिनस, सिंगल जो होता है, राइट, सिंगल जो होता है, दे दिस इज दैट इज कॉल्ड एज
राइट एल्यूमिनस, ओके, आई मीन सिंगल का मतलब होगा सिंगुलर, सिंगुलर, ओके, सिंगुलर, सिंगुलर, ओके। उसका प्लूरल पूछ रहे हैं, जब प्लूरल हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज एल्यूमिनाई, राइट, और एल्यूमिनाई, ठीक है, एल्यूमिनाई, ठीक है। सो दीज आर द राइट आंसर। 58 क्वेश्चन नंबर 58, एल्मा मैटर इज द प्लेस वेयर वन, एल्मा मैटर क्या होता है? एल्मा मैटर इज ए प्लेस जहां कोई क्या करता है, स्टडी पढ़ाई करता है, शादी करता है, डाइड, वॉज बोर्न या पैदा होते हैं, राइट। मैरिड मीन्स शादी करना, ठीक है। एल्मा मैटर होता है स्टडीड, ठीक है, दैट मीन्स एल्मा मैटर पीएचडी के बाद होती है, ठीक है। आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ ए डिग्री, इट्स अ काइंड ऑफ ए सर्टिफिकेशन भी, हाँ ठीक है, ठीक है, एजुकेशन पार्ट होता है, राइट, दिस इज ओके, दिस, yeah, then comes a next question, identify the part which contains an error in the following sentence। कौन सा क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन का पार्ट जिसमें एरर होता है, क्या होता है, जिसमें एरर होता है। 10 miles are not a long distance they are saying, right, okay, 10 miles are not a long distance, 10 miles are not a long distance, or no error, 10 miles are not a long distance. They are saying identify the part which contains an error in the following sentence. 10 miles, okay, are not a long distance. So obviously 10 miles correct है, are not का check करेंगे, is not होगा क्या are not होगा, a long distance or no error. 10 miles is not a long distance. जब हम 10 miles बोलते हैं तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, नॉट बाय द गिवन नंबर बट बाय द गिवन क्वांटिटी, राइट, दैट मीन्स जो उसका यूनिट होता है, राइट, दैट मीन्स डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस को इज बोलते हैं ना कि आर बोलते हैं, ओके। सो डिस्टेंस इज, आई मीन 10 miles डिस्टेंस इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज हाउ, सो दिस इज द राइट वन, मतलब राइट वन का मतलब इसमें रॉन्ग बताना था, कौन सा रॉन्ग है, तो इसमें रॉन्ग है B1, इसका मतलब आंसर में बी इज द राइट वन, ठीक है, ओके, देन चूज द करेक्ट ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस बिलो मीनिंगफुल। ऐसे सेंटेंस बनाओ या बताओ जिसमें करेक्ट ऑर्डर बनाना है, ठीक है, अगेन वो हम जो किया है पहले द सेम। History of India, then was there a Mahatma Gandhi, never in the greater man, okay, so 1 2 3 4 5 6, okay, let's check one by one। they are saying 1 पहले आएगा, 2 आएगा, history of India, then Mahatma Gandhi, was there a never in the greater man, no 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 no, wrong है, ठीक है, next, greater man, was there a Mahatma Gandhi, never in the, no wrong है, okay, never in the history of India was there a, was there a, again one, now दो बार तो वो हो नहीं सकता, no, okay, never in the history of India was there a greater man than Mahatma Gandhi, yes, this is the right one, right, that means never in the history of India was there a greater man than Mahatma Gandhi, ठीक है, okay, the right sequence is this one, 5 1 3 6 2 4, okay, this one, okay, this, then comes up the next one, ठीक है, okay, fill in the blanks with a suitable phrase preposition। he accepted the car, his claim for rupees 3,25,000, okay, he accepted the car on account of, by dint of, on in lieu of, because of his claim of rupees 3,20,000, 5,000, he accepted the car, he accepted the car in lieu of his claim
for rupees 3,000, 3,25,000. He accepted the car because of his claim of this. No, in lieu of, right? In lieu of. Sorry. He accepted the car on account of his claim for rupees 3,25,000. No, A1 is the right one. lieu of नहीं होगा. lieu of होता है जब सैलरी का इशू होता है, तब लीव ऑफ होता है कि लीव ऑफ मतलब जितनी भी ड्यू सैलरीज है वो क्लियर कर दीजिए, वो वाला केस है, राइट. ओके, दिस ऑन अकाउंट ऑफ, ही एक्सेप्टेड द कार ऑन अकाउंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 3,25,000. दैट मीन्स अगर किसी ने किसी के पैसे लिए हुए हैं और वो पैसे ना दे पाने के रीजन से बोलते हैं कि 3,25,000 का जो क्लेम है पैसे का वो ना दे के हम आपको कार दे देते हैं, राइट. तो प्लीज एक्सेप्ट इट, राइट. इसलिए ऑन अकाउंट ऑफ वहां आ जाएगा, ठीक है. ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा. Then the suitable prefix of the word for the word bitter is bitter. Bitter होता है कड़वा, okay. Suitable prefix so sorry, right, for the same word bitter. I am in am. I am bitter, in bitter, right. Imbitter, inbitter, unbitter, ambitter, right. This is how, ठीक है. So for this kind of question, what is the suitable prefix for the word bitter, right? We will do in this, right. Yeah, ambitter. So thing is this, the suitable prefix for the word bitter is, prefix क्या होता है? prefix होते हैं वो word यार जो कि पहले लगता है, जैसे bitter, उससे पहले, bitter से पहले एक word लगेगा. Imbitter, inbitter, unbitter, ambitter. So the right one is ambitter. Ambitter is the right word over there for the same. Correct? ये कर देंगे. Okay, then comes up. Fill in the blanks with the suitable conjunctions. ठीक है? Fill in the blanks with the suitable conjunction. Simple है ये वाला. He is slow, comma, dash, he is sure. He is slow and he is sure. He is slow but he is sure. He is slow for his sure. He is slow or he is sure. No, but, right, simple. ये तो simple. He is slow but he is sure. वो slow है थोड़ा but sure है कि confirmly ये चीज ऐसे होती है, right? Then complete the following maxim. Genius without education is like silver in the what? Shop, mine, well and pit. Genius without education, right, is like silver in the shop. No. Silver in the mine. No. Silver in the well. Okay. Silver in the pit. So silver in the mine. क्यों? Silver mine का connection है. Right. This is how ये क्या होगा? Mine would be the right answer for this. Okay. Then comes up, select the word that is opposite in meaning to the underlined word. My first lecture in the classroom was a fiasco. Okay, so now my first lecture in the classroom was a fiasco. Fiasco should be the underlined word. ठीक है, तो fiasco का underlined word का क्या meaning होता है? Opposite बताना है. Opposite हो गया success, joy, fun और disaster. बताओ. Right, success, joy, fun और disaster. So the thing is this, हमें first इसका अगर suppose underline word हमारा right है fiasco. So for that हम इसको बताएंगे या fiasco. अगर इसमें first
माई फर्स्ट लेक्चर इन द क्लासरूम वॉज ए फिएस्को। इसमें अगर फिएस्को को भी कंसीडर द अंडरलाइन वर्ड लाइक, ठीक है, ये तो इसका फिएस्को का अंडरलाइन वर्ड आई मीन जस्ट अपोजिट होगा डिजास्टर। मतलब फिएस्को का मतलब अच्छा होता है, अच्छा अच्छा लेक्चर गया। तो सक्सेस सिमिलर हो गया एंड सिनोनिम। जॉय एंड फन ये दोनों तो सिमिलर मान सकते हो, बट द फीलिंग इज सेम, बट वर्ड वुड बी यूज इज सक्सेस। अपोजिट हो जाएगा डिजास्टर, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा डिजास्टर। The right suffix for the word just to make it an abstract noun is just. Just they are saying the right suffix for the word, suffix not prefix. Suffix कैसे होता है, जैसे word है just, है ना, just, उसका सफिक्स, सफिक्स मतलब उसके बाद आने वाला वर्ड, यहाँ पर सफिक्स। प्रीफिक्स ये होता है, ये प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया, लास्ट वाले में प्रीफिक्स था, ठीक है। द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, राइट। जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है डियर जिसको देख नहीं सकते, ठीक है, बताया था ना, ओके। सो द थिंग इज दिस, जस्टली, जस्टिफाई, जस्टिस, जस्टिंग। जस्टिंग कुछ नहीं होता, जस्टली कुछ नहीं होता, जस्टिफाई और जस्टिस होता है। तो जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय, राइट, दिस वन इज द राइट वन, दैट मीन जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्याय, यानी वो क्या होता है, वो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब दिखता नहीं है, ठीक है। दिस select the word that is similar in meaning to the underlined word. The request side energy is derived from the battery. क्या बताना है, सिमिलर मीनिंग। रिक्वेस्ट साइड मतलब, रिक्वेस्ट साइड का मतलब होता है जितनी चाहिए उतनी, जितनी चाहिए मतलब उतनी, यानी जितनी नीड है, दैट मीन्स नेसेसरी। नेसेसरी वुड बी द राइट वर्ड, जो कि सिमिलर वर्ड बोला है, यानी सिनोनिम बोला है, सिनोनिम, ठीक है। दिस देन द 68 सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ये भी सिमिलर मीनिंग बोल रहा है, यानी सिनोनिम दे आर आस्किंग। यानी कैंडिड, हिज कैंडिड ओपिनियन वाज हैज वन him many friends, right? His candid opinion, candid means होता है kind, courteous, generous और frank, ठीक है। candid का मतलब होता है frank, ठीक है, यानी मतलब थोड़ी सी open, right, right, this then, right, then select the word that is opposite in meaning to the underlined word, right। इसमें ऑपोजिट बताना है, दैट मींस एंटोनिम बताना है, ओके। Everyone agreed that it was a piece of meticulous research. Meticulous research. Meticulous, that means scrupulous, right? Everyone agreed that it was a piece of meticulous research, right? Meticulous, meticulous मतलब होता है कि आपका किसी रिसर्च की कंसिडरेशन, राइट, और उसकी इम्पोर्टेंस के बेस पे, राइट, ओके। सो थिंग इज दिस, yeah, careful, right, careful, so very careful in fact, right। तो select the word that is opposite in meaning, opposite बताना है उसका, यानी careful तो given है, उसका careful का opposite यानी careless हो जाएगा, right। so thing is this कि हमें इसमें antonym बताना था। meticulous research का मतलब हुआ care का meaning हुआ very careful, और उसका opposite हो गया careless, ठीक है। this is how, then comes up more questions, one or two more। The words avert means avoid, right? The word avoid means hated, degenerated, avoid and fall, right? So the word avert means, avert means, avert means to prevent something unpleasant, right? To prevent something unpleasant, यानी किसी चीज को ना अच्छी चीज को रोकना, right? वो उसका मीनिंग हो गया unpleasant चीज को रोकना, right? That means
अवॉइड, अवॉइड अनप्लीजेंट चीज को रोकना, मतलब ऐसा होता है ना समटाइम कोई चीज को हम नहीं पसंद करते हैं तो उन इट्स लाइक दैट कि नो ओके ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अवॉइड, राइट, दिस इज हाउ, ओके। Then comes up here the adjective form of boast is, right, boast is the adjective form of boast is, boast की adjective form बतानी है, boastful, boastly, boasty, boastile, right, so the right form of boast adjective is, it would be boastile, right, okay, boastile, this is how. ओके देखो एक चीज और बता दें इसमें, इस ये जो वर्ड है ना बोस्ट, इसके डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव फॉर्म्स बनते हैं, राइट, लाइक बोस्टफुल भी इसका एडजेक्टिव होता है, बोस्टेड भी इसका एडजेक्टिव होता है, गिवन नहीं है, बोस्टिंग भी होता है, राइट, गिवन नहीं है, और बोस्टलेस भी होता है, राइट। बोस्ट मीन्स टॉक प्राउडली, है ना, बोस्ट मीन्स टॉक प्राउडली, चेक कर लेते हैं, राइट, बोस्ट मीन्स टॉक प्राउडली, जैसे किसी का प्रमोशन हो जाए, राइट, तो राइट, तो वो मेथड और मैनर ऑफ टॉकिंग वुड गेट डिफरेंट, है ना, ऐसा समटाइम इन केस, राइट, उसको वोस्ट कहते हैं, उसका वोस्ट का डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, बोस्टफुल, बोस्टिंग, बोस्टलेस और बोस्टेड, राइट, आउट ऑफ दीज इसमें से अगर हम एडजेक्टिव फॉर्म चेक करते हैं तो हमें एक दिया हुआ है आउट ऑफ दोज बोस्टफुल, ना कि बोस्टली, दिस इज एडवर्ब, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, ठीक है, ठीक है, तो इन दैट केस हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, आंसर, ठीक है, बोस्टफुल एडजेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि एडजेक्टिव फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होती है इस वर्ड के लिए, ध्यान रखना, ओके, ओके फाइन, देन कम्स अप अ लिटिल स्मॉल सिंपल सा comprehension session, ठीक है, okay, let's check is in this paper, it is a very small, we have found it out, it's a very small comprehension, but comprehension in itself is exercise, let's do it out, okay, okay, let's find out the keyword firstly quickly. Vehicles do not move about the road for mysterious reason of their own, तो क्या हो गया, vehicles हो गए, रोड हो गई, मिस्टीरियस रीजंस हो गए, ठीक है, एक्टिविटीज हो गई, पीपल हो गया, एंगेज हो गया, ट्रैफिक हो गया, फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज हो गया, बिल्डिंग हो गई, इम्प्लीकेशंस हो गई, इन रीजन ऑफ इनस्केपेबल हो गया, इनस्केपेबल मतलब जिसको छोड़ा ना जा सकता हो, बचा ना जा सकता हो, राइट, ठीक है, इतनी चीजें हो गई, ओके, नेक्स्ट फाइन, लेट्स फाइन, next find the questions to solve it out, let's check, right, line 1 of the passage means that the vehicles move on the roads for reasons difficult to explain to serve specific purposes of people in a haphazard fashion in ways beyond our control, okay, check कर लो first sentence क्या given है, vehicles do not move about the roads for a mysterious reasons of their own, right, they move only because people want them to move in connection with the activities which people are engaged in, मतलब ये बोल रहे हैं vehicles अपने आप रोड्स पे जादुई तरीके से नहीं चलते हैं या रहस्यमयी तरीके से, वो तब चलते हैं जब चलाए जाते हैं लोगों के द्वारा अपने अपने कुछ ज़रूरी काम या ज़रूरी चीज़ों में होते हैं उसके लिए, ठीक है, इसका मतलब हो गया बी इज़ द राइट सुटेबल आंसर, राइट, दैट मीन्स टू सर्व स्पेसिफिक पर्पसेस ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की नो ना ज़रूरतों को पूरा करने, राइट, पूरा करने के लिए या कोई पर्पस या काम है, यानी पर्पस है यानी टास्क है, राइट, उसके लिए यूज किए जाते हैं व्हीकल्स, ठीक है, दिस अपने आप नहीं चलते हैं, वो ये बोल रहे हैं बस,
Next, the author says that the traffic is a function of activities. He means that human activities are taking place, human activities are dependent on traffic. Traffic is not dependent on human activities, traffic is connected with human activities. Okay, इसमें कुछ given था, देखो this. The traffic is therefore a function of activities, and because in towns activities mainly take place in buildings, traffic in towns is a function of buildings. The implication of this line reasonings are inescapable. That means एक तरह से देखा जाए तो ये बोल रहे हैं ट्रैफिक इज कनेक्टेड विद ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी ट्रैफिक ह्यूमन की एक्टिविटीज से कनेक्टेड है। यानी ह्यूमन की एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन को ज़रूरत हुई कुछ काम के लिए, ये लाना है वो लाना है, ये सब, ये ऑफिस का वर्क या ये थिंग एंड वो थिंग, ठीक है। सो वट एवर थिंग्स वुड बी देयर, उसके लिए ये एक्टिविटी हुई उसकी, उससे कनेक्टेड है। उसका टास्क मतलब व्हीकल लेके जाना पड़ेगा, बाइक गाड़ी सब लेके जाना पड़ेगा, तो वो हो गया व्हीकल चलाना रोड पे। तो दिस इज हाउ डी इज द गुड वन, राइट। Then, the author suggested by his argument that to regulate traffic, more policemen have to be employed. To regulate activities, traffic has to be controlled. To regulate traffic, buildings have to be taken into consideration. To understand the traffic problem, we must examine the social context in which it is found. देखो, इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा तो कुछ डिटेल में गिवन नहीं है पैसेज में, ठीक है। इफ वी चेक, देखो फिर से चेक कर लो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं गिवन है, राइट। बट ऑथर का मतलब क्या है कहने का, कि हमारे जो ट्रैफिक के इश्यूज हैं उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मतलब मोर पुलिसमैन को जॉब्स पे रखा जाए, राइट। देन मोर, राइट, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए रूल्स बना के। ट्रैफिक बिल्डिंग्स के बेस पे बना होना चाहिए। ट्रैफिक को समझने के लिए प्रॉब्लम को, राइट, हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसको चेक करना चाहिए, राइट। देखो सारे ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, कोई ऑप्शन गलत नहीं है। अगर बोल रहे हैं लोगों को जॉब पे रखो, पुलिसमैन को, ठीक है, ट्रैफिक को कंट्रोल करो, ठीक है, यानी रूल्स बनाओ, पॉलिसीज बनाओ, और देन बिल्डिंग्स जितने हिसाब से हैं उसके हिसाब से ट्रैफिक एंड रूल्स होने चाहिए, ये भी ठीक है। और एक ये वाला भी ठीक है, राइट। लास्ट वन, मोस्ट अप्रोप्रिएट वी नीड टू मार्क इट आउट, यानी सबसे अच्छा आंसर, सबसे अच्छा आंसर व्हाट इट इज, यानी द बेस्ट सुटेबल वन, राइट, इज अ डी वन, ठीक है, ये वाला। तो ये दैट मींस आप कैसे ट्रैफिक को रिजॉल्व आउट कर सकते हो, मतलब उस पर सोच के, उसके बारे में सोच के, राइट, कि ओके क्या इश्यूज हैं, क्या इशू की रीजंस हैं, क्यों मीन क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट, एंड क्या उन सॉल्यूशंस को अप्लाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एंड क्या वो सॉल्यूशंस के लिए जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास हैं, क्या हमारे पास रूल्स हैं, क्या हमारे पास पीपल भी हैं, क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, तो सब कुछ उसमें आ जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हमें एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तब हमें ये पता चलेगा क्या इशू, क्या प्रॉब्लम, रीज़न उसका, और उसके बाद उसको सॉल्व करने का मेथड इज which kind of math, ठीक है, this, okay, by this line of reasoning the author means, so D answer would be the most suitable one। सही सारे हैं, यही तो होता है, देखो सब ठीक होंगे। अब देखो मार्क इट आउट, इस क्वेश्चन में सबका 1 मार्क का क्वेश्चन है, सारे आंसर सही है, कुछ बच्चे कुछ लगाएंगे, कुछ बच्चे कुछ लगाएंगे, राइट, और कन्फर्मली एक ही आंसर ठीक होगा। तो सोच लो कितने बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो सकता है या हुआ होगा, राइट। क्यों, वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी ठीक लगाएंगे, सारे ही ठीक है, कोई गलत है ही नहीं, राइट। और एग्जामिनर चेक करेगा वो जो मोस्ट सुटेबल है, तो दैट मीन्स कुछ परसेंटेज बच्चों जो होंगे स्टूडेंट्स उन्हीं का तो ठीक होगा, राइट। दैट मीन्स 1 मार्क तो आपका लूज हो सकता है ना ऐसे क्वेश्चन में। इसलिए हमें अपनी लेवल ऑफ थिंकिंग को अच्छा रखना होता है, यानी वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके हाउ द थिंग्स आर देयर, ठीक है, कौन सा आंसर सूट ज़्यादा करेगा, राइट। दिस देन कम्स अप द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। बाय दिस लाइन ऑफ रीजनिंग, द ऑथर मीन्स, देखो इसमें पहले चेक करो पैसेज में,
sorry, yes, this line of reasoning, ठीक है, this implication, the implications of this line of reasoning are inescapable. मतलब इस ये जो implications आए, मतलब ये सब चीजों का जो इफेक्ट आएगा, इन इफेक्ट्स, इस ये जो इफेक्ट्स आए इस लाइन को, कि इस रीजन से जो इफेक्ट्स आए हैं, इस बारे, इस चीज को, इस टॉपिक को छोड़ना विदाउट डिस्कशन पॉसिबल नहीं है. मतलब आजकल के टाइम में इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस टू ऑफ दिस टॉपिक, राइट. दिस इज हाउ, राइट, दिस इज हाउ. Okay, yeah. So for reasons difficult to explain, okay, क्या आंसर्स हो सकते हैं? फॉर रीजंस दे आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, टू सर्व स्पेसिफिक पर्पसेस ऑफ पीपल इन वेज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. नो नो नो, इनफैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था ना, क्वेश्चन तो लास्ट वाला है. लेट मी चेक, ये वाला, हाँ, राइट. आइडियाज कंटेंटेड इन दिस लाइन, आइडिया, रीजन, ठीक है, ओके. Idea contained in any one line of this argument, no. The manner of arguing, मतलब ये जो कहते हैं ना डिस्कशन को बहस भी कह देते हैं. दिस इज हाउ दैट इज, राइट, ओके. दिस एंड दिस रो ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर, नो. सो क्या होगा? द मीनिंग इज दिस, द आइडिया कंटेन्ड इन दिस लाइन, दिस वन. This, okay, this would be the right answer for you, right. This would be the right answer for you, the one. That means, right, लाइन ऑफ रीजनिंग, यानी इस लाइन में जो रीजनिंग गिवन है, यानी रीजनिंग बेस्ड ऑन द अपर डिस्कशन ऑफ द पैसेज, वो जो पार्ट है, वो पार्ट के बेसिस पे जो थिंग रीजंस निकल के आते हैं, उन डिस्कशंस को आज के टाइम में छोड़ना पॉसिबल नहीं है, यानी उनसे बचा नहीं जा सकता. दिस ट्रैफिक की जितनी इशू है ना, इससे बचा नहीं जा सकता इसको डिस्कस करे बिना कि ओके ओके नो प्रॉब्लम, अवॉइड कर दो, नॉट टेक इंटरेस्ट और चलता रहेगा. नो, नहीं चल सकता, राइट, नहीं चल सकता. इश्यूज बढ़ जाएंगे, व्हीकल्स से पॉल्यूशन, जैमिंग, टाइम वेस्टेज, एक्सर्शन, राइट, दिस, राइट, ब्लॉकिंगनेस, ठीक है, ये सारे इश्यूज इससे आ सकते हैं. इसलिए इसको डिस्कस करना, इसलिए वहां पे था ये वाला भी क्वेश्चन का आंसर, इसीलिए था. हमें इसको दोबारा चेक, देखो, केवल पुलिसमैन लगाने से ट्रैफिक इशू रिजॉल्व नहीं होगा, केवल रूल्स बनाने से ट्रैफिक इशू रिजॉल्व नहीं होगा, सारी बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग रूट्स एंड ट्रैफिक लाइट्स लगाने से भी इशू नहीं रिजॉल्व होगा. हमें इसको दोबारा चेक करना, सोचना पड़ेगा, जिसमें ये सारे ऑप्शंस आते हैं एंड अदर थिंग्स भी आती हैं, ठीक है. दैट इज हाउ, इस बेसिस पे आपकी वो सारी चीजें फिर से चेकआउट होंगी और फिर कुछ नए सॉल्यूशंस निकलेंगे, एडवांस भी हो सकते हैं, अच्छे बेस भी हो सकते हैं, राइट. दिस इज, ठीक है. तो इसलिए ये वाला पार्ट इससे रिलेटेड है, दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड है, और बाकी तो रिलेटेड है ही पूरा का पूरा चैप्टर, आई मीन पैसेज, राइट. दिस इज सो विद द हेल्प ऑफ दिस passage as well, comprehension passage, we have covered the paper of 2018 of 9th class in the PYQ solution series. So we have covered this. I have put up number of instructions, the form filling, time management, separate register of of yours, right, and डू कमेंट आउट विद द सॉल्यूशंस, जिससे आप ये सॉल्यूशंस को हम उसको रिवाइज कर सकें और आप वो सॉल्यूशंस के बेस पे अपना पेपर सॉल्व भी कर पाओ, खुद से भी करो, एंड अगर डाउट्स ज़्यादा आते हैं तो वी कैन क्रिएट सम मोर क्लासेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेम, ठीक है. वी हैव कवर्ड दिस पेपर, चेक करना है इस पेपर को, देन कम्स अप विद द कमेंट्स, राइट. होप इट वुड बी गुड फॉर यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, ठीक है. ओके, with this we are closing this video. We will come up with the next upcoming videos of next year papers in the class 9 series, ठीक है. Okay, take care, all the best students, have a nice time, take care, bye, thank you.